Good morning, dear students. In last lecture, we have studied about 4 different ways by which the organisms can respond to the variety of the changing environmental conditions near to them, and the ways which they were performing regulation, conformation, migration, and suspension. So all these 4 are the main mechanisms by which the organisms can prepare themselves for the surrounding environmental changes. Now, there are a variety of the ways by which the organisms are actually having some adaptations, and these adaptations are allowing them to survive in the unfavorable conditions. That is also important. So number of organisms are having variety of the adaptations to the surrounding environment. Okay, जहाँ पे उनको constantly survive करना है, changing environment के लिए तो उनके पास options हैं ही, but suppose in their own habitat they have to survive throughout the year, then what they should do? तो उनके लिए तो उनको adaptation करना ही पड़ेगा. If they are not adapting themselves, they are obviously going to die. And that is again the principle of Darwin's theory, that is survival of the fittest. अब देखिए यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी है एक साथ, यहाँ पे इकोलॉजी भी हम पढ़ रहे हैं बिकॉज आवर चैप्टर इज प्लेस्ड इन इकोलॉजी. The same things you are going to study in the chapter number 7 with other perspective. आपने देखो 11th में प्लांट के एडेप्टेशंस पढ़े थे चैप्टर 5 में, तो वो प्लांट की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है. उसी चीजों को हम अलग तरह से पढ़ रहे हैं विद डिफरेंट पर्सपेक्शन, that is ecological way. And the same things we are going to learn in the chapter number 7 with some different concept, that is evolutionary way. तो ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. ओके, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कौन डिसाइड करता है? जहां पे वो सर्वाइव कर रहा है, that is its habitat. And what is the habitat? Biotic plus abiotic factor. Now what is abiotic factor? Surrounding environment. So surrounding environment is going to decide that what will be the what will be the anatomy, morphology and physiology of the organism, as well as ये अपने changing environment के बारे में अपने next generation को भी बताते हैं that the environment is going to change in this way. So they are passing on the information to the next generation by the means of their genes. तो ये क्या है? Evolution. So ये सभी चीजें इंटरलिंक्ड है, और ये जो इंटरलिंक्ड है, ओके, अलग अलग जगह पे उसको हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, राइट? So let's discuss about adaptations in different organisms. So adaptation is the morphological, physiological and behavioral attribute that enables an organism to survive and reproduce in its habitat. तो आप देखिए एडेप्टेशन की डेफिनेशन में लिखा है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट दैट इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म. ओके, मतलब ये तीनों तरह से अडेप्ट करना है, तीनों में से किसी भी तरह से अडेप्ट करना, so that the organism can survive not only survive but survive and reproduce in its habitat. अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है in unfavorable condition, ऐसा नहीं लिखा है. आगे जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में बात थी, रेगुलेशन, कन्फर्मेशन, सस्पेंशन, माइग्रेशन. लेकिन एडेप्टेशन तो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि उनका हैबिटेट तो उनको वहीं पे रहना है, तो वहां पे रहने के लिए अपने आप को उस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा, दैट इज एडेप्टेशन.
Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. अभी मैंने आपको बताया कि ये सभी चीजें सेपरेट नहीं है, दे आर इंटरलिंक्ड. ओके, तो एडेप्टेशंस आर इवोल्यूशनरी. ओके, एंड दे आर जेनेटिकली फिक्स्ड. इसका मतलब क्या है, अपने जीन्स में भी ये अब हो चुका है. एंड सो इट इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सिर्फ अपने आप को मॉडिफाई कर दिया, नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा? नॉट लाइक दैट. Now adaptations of kangaroo rat. Okay, so adaptations of kangaroo rat in North American deserts. Okay, ये case study है. Internal fat oxidation gives water as byproduct if there is no external source of water. अब ये adaptation है, अगर बाहर water की scarcity है, surrounding environment में से अगर उसको water नहीं मिलता है, then what this kangaroo rat is going to do, तो अपने बॉडी में जो फैट उसने स्टोर करके रखा है, that fat is going to be oxidized. Okay, that fat is going to be oxidized and it will give water as a byproduct. तो fat oxidation होगा तो उसको energy भी मिलेगी and water is also going to be produced as a byproduct, and so it is not going to require external source of water. Ability to concentrate urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. तो ये भी important है. Water, एक तो water produce कर रहा है, that is the first way. Second way, अपने यूरिन को ये concentrate कर रहा है so that minimum volume of water is going to be removed from the body. तो नया वाटर प्रोड्यूस करना और यूरिन में वाटर लॉस को प्रिवेंट करना. बाय बोथ ऑफ दिस वेज इट इज एक्चुअली गोइंग टू प्रिवेंट द वाटर लॉस और अपने रूटीन के लिए वो वाटर को यूटिलाइज कर सकता है. दैट इज द वे ऑफ द कंगारू रेट. ओके, ये एक तरह का इंटरेस्टिंग एडेप्टेशन है. आप सोचिए आपके आसपास में ऐसे और भी कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अपने आप को ऐसे अडेप्ट करते हैं. Now adaptations of desert plants. Okay, तो 11th में हमने बहुत सारे adaptations हमने पढ़े हैं plant में, chapter number 5. So here you can see presence of thick cuticle on the leaf surfaces. Okay, तो जो desert plant है उसका आपको ये leaf का section दिखा है surface का, उसके ऊपर ये आप spines भी देख सकते हैं. Okay, तो अपने leaf surface के ऊपर ये एक बहुत बड़ा thick cuticle layer बनाते हैं. Okay, so what is the importance of this cuticle layer? So we know that this cuticle layer is going to prevent the water loss through transpiration. Okay, transpiration prevent करेगा and because of that it is obviously going to prevent the water loss from the body, क्योंकि desert में obviously water की बहुत सारी scarcity है. दूसरा एडेप्टेशन जो होता है डेजर्ट प्लांट में, दैट इज संकन स्टोमाटा. आप देखिए, अब ये सभी चीजें आप मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं और यहाँ पे आप वही चीजें रिपीट पढ़ रहे हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ द चैप्टर विच इज रिलेटेड टू इकोलॉजी. संकन स्टोमाटा आप देख सकते हैं यहाँ पे. संकन स्टोमाटा, संकन स्टोमाटा का मतलब क्या है, तो आपका जो ये देखिए क्यूटिकल का लेयर है और स्टोमाटा जनरली यहाँ पे सरफेस पे होना चाहिए जहाँ पे अभी ये कर्सर दिख रहा है, लेकिन ये स्टोमाटा कैसा है, इट इज जस्ट इन अ ट्रेंच. ओके, थोड़ा नीचे है. ओके, संकन. ओके, तो स्टोमाटा डायरेक्टली एक्सपोज नहीं हो रहा है टू द एयर एज वेल एज सनलाइट, क्योंकि आप देखिए डेजर्ट में प्रॉब्लम क्या है, सनलाइट इज ऑल्सो स्कॉर्चिंग एज वेल एज ड्यूरिंग द समर्स पर्टिकुलरली, एज वेल एज समर में विंड भी इतना होता है और जितना विंड ज्यादा उतना वाटर का जो एयर है दैट इज ड्राई. ओके, ड्यूरिंग द समर्स बिकॉज ऑफ द विंड. ओके,
तो एयर ड्राई रहने वाली है, सनलाइट भी ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ऑल दिस बोथ द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर स्टोमाटा टू बी ओपन। तो कॉन्स्टेंटली ओपन रहेगा स्टोमाटा, और अगर डेजर्ट प्लांट में स्टोमाटा कॉन्स्टेंट ओपन रहेगा तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। तो ऐसा नहीं होने देना है, इसीलिए संकन स्टोमाटा हैज बीन गिवन टू द डेजर्ट प्लांट के जो थोड़े नीचे उतरे हुए हैं फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर। उसी की वजह से इट इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपीरेशन। तो ये दो वहां पे इनके पास एडेप्टेशंस हैं, एक तो थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल एज वेल एज संकन स्टोमाटा। तीसरे जो कैम प्लांट्स हैं, ओके, फोटोसिंथेटिक पाथवे कैम एना, जैसे हमने क्रेन्स एनाटॉमी इन C3 प्लांट्स पढ़ा था, ऐसे ही कैम प्लांट्स भी होते हैं। तो ये जो कैम प्लांट्स हैं उनके पास एक अलग तरह का पाथवे, दैट इज क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द कैम। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पाथवे है कैम प्लांट्स में, ओके, इट इज इनेबलिंग देयर स्टोमाटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट इनके पास प्रोविजन दिया हुआ है। हमने 11th में दो तरह के प्लांट पढ़े थे, C3 C4, एंड वहां पे एक बार सिर्फ टर्मिनोलॉजी में आया था कि कैम प्लांट्स आर ऑल्सो देयर। तो ये जो कैम प्लांट है ये तीसरे तरह के प्लांट है जिसमें क्या है, क्रेजुलेशन एसिड बनते हैं, और ये जो एसिड है उसकी वजह से क्या होता है, तो आपके जो प्लांट के स्टोमाटा है वो डे टाइम में भी क्लोज रहते हैं। जनरली क्या होता है, स्टोमाटा इज रिमेनिंग ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द स्टोमाटा आर एक्चुअली remaining close during the daytime because of this CAM photosynthetic pathway. Desert plants like Apuntia have no leaves. Okay, तो ये नीट क्वेश्चन है, ये सभी के सभी नीट क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। So desert plants like Apuntia have no leaves. They have reduced the leaves into spines. आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव्स जो है उनको स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया है, और जो फोटोसिंथेसिस की जो ड्यूटी है वो स्टेम को दे दी गई है, और इसीलिए स्टेम आप देखिए सिलिंड्रिकल नहीं है, स्टेम्स आर फ्लैट। ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म्ड बाय स्टेम्स। ओपुन्शिया they are not having leaves. Okay, so this is the adaptation of the desert plant. Now adaptations of mammals. So mammals from colder climates have shorter ears and limbs to reduce heat loss. This is called एलन्स रूल। ओके, अब ये एलन्स रूल आपके बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो एलन्स रूल, एलन करके एक टेक्सोनोमिस्ट और उसके साथ साथ फिजियोलॉजी को स्टडी करने वाला एक साइंटिस्ट है, उसने ये स्टडी करके बताया है कि जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं जो एनिमल्स, उनके जो ईयर की साइज है दैट इज ऑब्वियसली स्मॉल, लिम्स साइज इज आल्सो स्मॉल, मतलब जो पेरिफेरल ऑर्गन जिसको हम बोल रहे हैं वो स्मॉल साइज है। क्यों ऐसा है, बिकॉज ईयर विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी स्टेम, लिम्ब इट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी स्टेम, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि आपके हाथ और पांव, ऐसे जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में जो सर्वाइव करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये जो पेरिफेरल ऑर्गन्स हैं, ओके, एपेंडिकुलर ऑर्गन्स आप इसको बोल सकते हैं, उनकी साइज स्मॉल रहती है। क्यों, तो जितना साइज ज्यादा होगी वॉल्यूम के अगेंस्ट में इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम के अगेंस्ट में सरफेस एरिया बढ़ेगा, और उसी वजह से हीट लॉस ज्यादा होगा। और कोल्डर क्लाइमेट में हीट प्रिवेंट करना है, लॉस नहीं होने देना है, बॉडी हीट को बचा के रखना है। इसीलिए जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, पर्टिकुलरली आप देखिए पोलर रीजन वगैरह में, तो वहां पे इन ऑर्गेनिजम्स के जो ये ईयर्स हैं और लिम्स हैं वो आप देखिए तो स्मॉल साइज में होते हैं, दैट इज एलन्स रूल।
Aquatic mammals like seals have a thick layer of fat that is called blubber below their skin that acts as an insulator and reduces loss of body heat. Okay, तो aquatic mammals हैं जैसे कि seals वगैरह है. अब aquatic mammal है, इनको रहना है throughout the year in the oceans. Okay, प्रॉब्लम क्या है, जितना पानी में वो ज्यादा रहेंगे हीट लॉस फास्ट होने वाला है ड्यूरिंग द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन. लेकिन इनके स्किन के नीचे एक ऐसा थिक लेयर दिया हुआ है, दैट थिक लेयर ऑफ फैट हैज बीन गिवन व्हिच इज नोन एज ब्लबर. ये नीट क्वेश्चन है. दिस फैट लेयर और यू कैन से ब्लबर इज एक्चुअली एक्टिंग एज इंसुलेटर, और उसी की वजह से जो बॉडी का जो फैट जो हीट है उसका लॉस नहीं होता है. अब देखिए ये स्किन है ऊपर, इतना जो है वो स्किन है ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1/2 सेंटीमीटर. अब स्केल के साथ मैच करिए इसको, और इसको आप देखिए 1 सेंटीमीटर जितना आप इसका स्किन का थिकनेस है. ओके, तो स्किन भी कम थिक नहीं है. और उसके साथ साथ आप देखिए तो 1 2 3 ऑलमोस्ट 4 to 4.5 सेंटीमीटर जितना तो इनका ब्लबर का थिकनेस है. ओके, ऑफ द फैट जस्ट बिलो द स्किन. ओके, so this is the adaptations of mammals. Now some physiological and biochemical adaptations. Archaebacteria 11th में हमने स्टडी किया है चैप्टर नंबर 2. Archaebacteria which can survive in the harsh environmental conditions. So Archaebacteria are found in hot springs and deep sea hydrothermal vents where the temperature is more than 100 degrees Celsius. तो ऐसे बैक्टीरिया अवेलेबल है which can survive in the hydrothermal vents. Okay, जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो more than 100 डिग्री सेल्सियस होता है. और ऐसे और भी हैं आर्कीबैक्टीरिया, सिर्फ टेम्परेचर के लिए नहीं, उस अलग फैक्टर्स के लिए भी हैं. The bacteria which can survive at the higher temperatures are known as thermophiles. ये आपके 11th में टर्म दिया हुआ है. The bacteria which can survive in the high methane concentration, तो मिथेनोजेंस उसको बोला क्या है. The bacteria which can survive in the high saline environment, या salt जहाँ पे ज्यादा है वहां पे, those are known as halophiles. Bacteria which can survive in the low temperature condition, that is known as psychrophiles. Bacteria which can survive under high pressure, okay, you can say aquatic bacteria which can survive in the some lower zones of the ocean and river, उसको बैरोफाइल्स बोला गया है. तो ऐसे बहुत तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं. जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया, दोज आर नोन एज एसिडोफाइल्स. हार्श अल्कलाइन कंडीशन में सर्वाइव करने वाले हैं तो उनको बोला गया अल्कलीफाइल्स. So there are number of bacteria which are present, archaebacteria particularly, which can survive in this type of the extreme environments. और इस सभी तरह के बैक्टीरिया के ग्रुप को हम बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स. Many fish thrive in Antarctic waters where the temperature is below 0 degree Celsius. Many marine invertebrates and fishes live at great depths in the ocean where the pressure is more than 100 times the normal atmospheric pressure. मतलब हम normal atmospheric pressure को 1 atm बोलते हैं, 1 atmospheric pressure. तो ये 100 times ज्यादा जहाँ पे होता है atmospheric pressure deep in the ocean. Okay, वहां पे ऐसे मराइन इनवर्टिब्रेट सर्वाइव कर सकते हैं. कुछ फिशेस भी सर्वाइव कर सकते हैं. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एंजुलर फिश आपको दिखाया गया है. ओके, दिस वन इन द इट इज अ डीप सी फिश. ओके, जो डेप्थ में सर्वाइव कर सकती है, जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, द बॉडी विल कोलैप्स. ओके, सो ये भी कुछ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशंस हैं. These are actually physiological adaptations. At high altitude places, that is more than 3,500 meters,
वी फील अल्टीट्यूड सिकनेस। ओके, जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं माउंटेन रेंज में, ओके, मोर देन 3,500 meters फ्रॉम द सी लेवल, ओके, तो ज्यादातर सभी को अल्टीट्यूड सिकनेस होती है ऑन द हाई अल्टीट्यूड्स। इट्स सिम्टम्स, नाउ व्हाट आर द अल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 1 मार्क 2 मार्क में बोर्ड एग्जाम में। इट्स सिम्टम्स आर नोजिया, वॉमिटिंग सेंसेशंस, हार्ट पाल्पिटेशन, हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, फैटिक, ओके, इज आल्सो देयर, चक्कर आते हैं, ये सब होता है। दिस इज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है, देयर इज थीन एयर वी कैन से कॉमनली, और ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे कम है। सो बॉडी डज नॉट गेट इनफ अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम है। ग्रेजुअली वी एक्लेमेटाइज द सिचुएशन, और ऐसा कांस्टेंट नहीं होता है, हम गए वहां पे और थोड़े टाइम के लिए होता है, देन वी आर एक्लेमेटाइजिंग विद द सिचुएशन and the body compensates low oxygen availability by increasing RBC and breathing rate and decreasing the binding capacity of the hemoglobin। अब देखिए बॉडी क्या चेंजेस करता है, लो ऑक्सीजन कंटेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते वहां पे, शुरुआत में हमें प्रॉब्लम होती है when just we have reached the place, but afterwards what happens, our body is changing ourselves। okay, क्या करता है बॉडी, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम है लेकिन फिर भी आपको ऑक्सीजन तो जितना बॉडी को चाहिए उतना लेना पड़ेगा, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द रेसिपिएंट्स। कौन रेसिपिएंट है, आरबीसी, जितने आरबीसी नंबर ज्यादा उतना हीमोग्लोबिन ज्यादा, जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा उतना O2 भी बाइंड ज्यादा होगा, एज वेल एज ब्रीदिंग रेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, जितना ब्रीदिंग ज्यादा होगा उतना ज्यादा ही ऑक्सीजन हमें मिलने वाला है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जितना फर्मली बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ उतना वो इजीली रिलीज नहीं करेगा टू द टिश्यूज, इसलिए बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की उसको रिड्यूस करना भी उतना इम्पोर्टेंट है। बाइंड होना चाहिए but it should be reduced so that just after binding it can readily deliver the oxygen to the cells and tissues। okay, so that is also important। so अलग अलग तरह के हम पढ़ रहे हैं अभी एडेप्टेशंस, हमने फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल पढ़े, देन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल भी पढ़े, एंड नाउ बिहेवियरल एडेप्टेशन। ओके, सो बिहेवियरल एडेप्टेशंस में क्या है, तो ऐसा एग्जांपल आपको दिया हुआ है दैट डेजर्ट लिजर्ड्स bask in the sun and absorb heat when their body temperature is low। क्या करता है, सन बाथ लेने के लिए जाता है डेजर्ट लिजर्ड when the body temperature is low। ओके, विंटर में ऐसा वो करेगा। ओके, इवन ड्यूरिंग द नाइट टाइम इन द समर एज वेल। ओके, बहुत बार ऐसा होता है कि समर्स में भी डेजर्ट में नाइट टाइम पे टेम्परेचर डाउन होता है, so during the morning time this desert lizard is coming for the sun bath। okay, and it is actually receiving the heat for its body, but move into shade when the ambient temperature starts increasing। और जैसे जैसे डे टाइम बढ़ता जाएगा temperature in the desert is going to increase। okay, it is moving to the shades। आप देखिए यहाँ पे दोनों तरह के एक्चुअल फोटोग्राफ आपको दिखाए गए हैं, तो इट इज मूविंग टू द shades when the temperature is increasing। okay, some species burrow into soil to hide and escape from above ground heat। okay, तो ग्राउंड के ऊपर जो हीट पहुंच रही है थ्रू द सनलाइट, ओके, उससे बचने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं इनटू द सॉइल। ओके, अपने आप को सॉइल के नीचे हाइड कर देते हैं। ओके, सो ये भी डेजर्ट लिजर्ड के कुछ स्पीसीज में ऐसा होता है। You can see the actual photograph of this also। so dear students, this is all about some behavioral adaptations। ऐसा behavioral adaptations आप देखिए कैमेलियन में भी होता है। ओके, अपने बॉडी के कलर को वो चेंज करता है।
ऐसे बहुत और ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने आप को कैमोफ्लेज करके चेंज करते हैं टू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ओके, टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रेडेटर्स। ओके, तो ये भी एक तरह का एडेप्टेशन है। तो वी हैव डिस्कस्ड इन दिस 4 लेक्चर्स अबाउट ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने आधा चैप्टर खत्म किया है अबाउट ऑर्गेनिजम्स। वी हैव स्टडीड at individual level what the organisms are doing, okay, वो हमने देखा with the surrounding environment. Now what the organisms in a group means in a form of the population are interacting with the surrounding environment. अभी हमने देखा 1-to-1 interaction organism with the environment up to this. Now we will be discussing about population with the environment. Okay, so if you have any doubts and queries regarding this chapter, please contact me. Okay, call me, you can WhatsApp me, fine, and learn well. It is really interesting chapter and important as well, okay, for your 1 to 3 marks question in board as well as NEET questions. Fine, have a nice day.